आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो मैं आज जिसकी बात करने वाला हूँ, नॉर्मली देर आर schools, colleges, and coaching institutes which are kind of helping you or trying to prepare you or trying to assure you or guide you, train you, mentor you for getting into engineering colleges or medical colleges or any other competitive exams and things like that basically. अभी इसमें मैं जो गहराई तक जाके फील करता हूँ कि मेयरली गेटिंग इनटू अ प्रोफेशनल कॉलेज जो मुझे भी मैं अपने टाइम पे भी आई कैन को रिलेट हमें जो लगता था कि जो हम कहते थे कि यार एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गई तो लाइफ बन गई बट बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन माई बी फ्रॉम एनआईटी आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर तो मैं आपको फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि मेयरली गेटिंग टू इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल कॉलेज वेदर इट इज इंजीनियरिंग और मेडिकल और फॉर मैटर गुड यूनिवर्सिटीज इज नॉट द एंड गेम यहां से तो आपकी गेम शुरू हो रही है कोई भी इंस्टीट्यूट कोई स्कूल कॉलेज बच्चों को ये नहीं बता पा रहा कि व्हाट इज योर कैरियर प्रोग्रेशन हाउ डू यू डू कैरियर प्रोग्रेशन मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आप क्या करेंगे मतलब इट्स नॉट लाइक दैट यू जस्ट गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यू विल फिनिश इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड योर आपकी लाइफ बन जाएगी यू विल स्टार्ट डूइंग जॉब एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ देयर आर years there are stages after getting into engineering college also or medical college also you have to decide primarily I am speaking more about engineering because I have done my engineering but I have served in corporates like medical corporates like hospitals like chain of hospitals like Manipal and Shelby and I've also worked in healthcare in UP government while we were running ambulances in a state like UP 5,000 ambulances I can relate to doctors also सो आपको ये नहीं पता होता कि आपकी किस स्टेज पे क्या करियर प्रोग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कितने लोग इंजीनियरिंग कैसे करेंगे कैसे अप्रोच करेंगे उसको व्हाट डू दे डू टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन और फॉर दैट मैटर टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर एंट्रेंसेज और आई मीन इट्स नॉट दैट ओनली इंजीनियर लाइक सिविल सर्विसेज आर्मी सो मेनी साइड professions. So unless you have a clear path chalked out for your career progression, eventual life, you should understand even after getting into a job, your real tussle starts there. उसके बाद आपका career progression क्या होना है आपको कौन सी स्पेशलिटी करनी है इट्स नॉट दैट यू आर इंजीनियर दैट्स योर इंजीनियर या दैट यू आर इन मार्केटिंग यू आर इन एचआर यू आर प्रोडक्शन यू आर इन ऑपरेशन और फॉर द मैटर यू आर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितनी ब्रांचेज और आगे होने वाली है अब ये कोई बात नहीं करता अभी अब आपका पैशन क्या है पैशन इज अ वेरी फैंसी वर्ड सो व्हाट डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पैशन विद इन इंजीनियरिंग आल्सो देयर कैन बी लॉट ऑफ पैशन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस सिमिलरली देयर आर सो मेनी स्पेशलिटी इन मेडिकल अब ये कहना कि यार इंजीनियरिंग मेरा पैशन है और मेडिकल इज माय प्रोफेशन इज माय पैशन हाउ डू यू नो दैट इन दैट व्हाट इज योर पैशन what do you aspire for becoming after becoming an engineer or after becoming a doctor or like I joined army after doing NIT because I was fond of getting into armed forces I had the fondness for or I had the courage that interest for wearing a uniform the charisma attracted me so there are so many things that need to be told to the students at school level, at college level, at any level. Merely, getting into subjects, physics, chemistry, math, biology, political science, economics, or for that matter, any other subject, history, psychology, doesn't help actually. How the country functions, what are the kind of opportunities do you have after doing your graduation, whether commerce or whether arts or whether medical, non-medical medical streams, that you need to understand at the end of the day because once you take a particular path, once you get into join a particular, start a particular journey in one direction, you cannot come back. Now these 3-4 years from 18 to 22 are so important unless parents, teachers, students, they don't have knowledge. Just by getting into the race, following somebody is not advisable.
हमें थोड़ा सा जुकाम और सर्दी हो जाती है तो हम डॉक्टर के भाग के चले जाते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली कंसल्टिंग राइट पीपल फॉर द करियर एडवाइस, फॉर द स्ट्रीम सिलेक्शन, फॉर हाउ आर यू। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में जाने के बाद हाउ डू यू अप्रोच योर स्टडीज इन द कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट नोबडी नोज एंड नोबडी टॉक्स अबाउट। So what my point is, and I will end this topic with the main the sum to summarize, I would say that जो दिखता है वो सिर्फ दिखता नहीं है, दिखना नहीं चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग दिख गया और आपको मेडिकल दिख गया या आपको कॉमर्स दिख गया या आपको आर्ट्स दिख गया। उसके आगे जो स्ट्रीम्स हैं वो कैसे बाइफरकेट हो रही हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए हायर स्टडीज करनी है, आपने करना चाहते हो, आप यू वांट टू गेट इनटू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और यू वांट टू गो फॉर स्टडीज इन इंडिया और अब्रॉड एंड सो मेनी थिंग्स, व्हाट आर योर आई मीन preferences, you just can't decide, I mean at the point, at that particular point। जब वो मौका आएगा तो आपको डिसीजन ही नहीं लेना है, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे, वो आप चुन के कहीं निकल जाओगे और बाद में आपको जो 10 ऑप्शन दिख रहे होंगे आप बोलोगे अरे यार सॉरी ये तो मुझे पता ही नहीं। So that's what I'm trying to basically say, that counseling and career mentoring and it is not a mathematics, it is not a psychology, it is not a science, it is a qualitative experience one has to have, and it is not bookish at all, I want to say at the end of it.